Hello friends, welcome back to Learn and Grow classes. I know this is so long time I'm back on YouTube because of some due to family reasons and some other issues. I will not continue and doesn't make any update. So let's start, and I promise you now that I make proper videos on time and upload every single video on proper scheduled time. So let's continue the second part of the chapter 2 of class 8. We'll just complete it half in the first part. Last topic about this chapter was about Robert Cliff. So let's continue how company rule expand. In first part, I'll explain you about how how East India Company expanded its rule in India, how British come to India, how they rule, how they set up everything they want to do in India. The Battle of Plassey I explained you. In 1757, battle of Plassey was happened. So let's continue with the second. In second part, I'll complete this full chapter to the end of the slide. Okay, so let's continue. Company rule expand. Now in this part, I'll explain you how company rule expands, how they expand the company rule after Battle of Plassey in 1757. So let's start with that. If we analyze the process of extension of Indian state by East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerged. The company rarely launched a direct military check on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before igniting an Indian kingdom. Means in this part, I'll totally explain you about how the East India Company expanded its power and their rule to all over the country. How they basically rule on the country. After Battle of Plassey, there is also one war, which is a Battle of Boxer. They fought. So let's also study about that. After Battle of Boxer, the company appointed resident in इंडियन स्टेट्स. अब क्या हुआ, कंपनी ने अपने जो रेजिडेंट्स थे उनको इंडिया में लाना शुरू कर दिया जब बैटल ऑफ बॉक्सर हो चुका था. दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. मींस उनका बेसिकली जो पर्पस था टू सर्व द armies, to serve the British army basically, and to exploit the India fully. Basically Britishers India में आए क्यों थे? To exploit the India. Through the resident, the company officially began interfering in the internal affair of the Indian state. They tried to decide who was to be successor of the throne and who was to be appointed in administrative posts. Sometimes the company forced the state into a subsidiary alliance. According to the term of this alliance, India ruler were not allowed to have their independent armed force. They were to be protected by the company, but had to pay for the subsidiary force for that the company was supposed to maintain for the purpose of his protection. If the Indian rulers failed to make payments, then part of their territory was taken away as penalty. For example, I'll continue with the example after I'm explaining this. So I am trying to explaining you that बैटल ऑफ प्लासी हुआ. बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमने एक वॉर और फॉट हुआ आफ्टर 7 years बाद, बैटल ऑफ बॉक्सर. जिसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उनके जो हमारे जो उनके ब्रिटिशर रेजिडेंट्स थे उनको इंडिया में लाना शुरू कर दिया ताकि वो यहाँ पर रहें और फेवर किसको करे, ब्रिटिश आर्मी को. ठीक है, वो ब्रिटिश आर्मी के एक तरह से बेसिकली मैं कहूँगी मैसेंजर्स की तरह रहने लगे कि वो सिर्फ यहाँ पर ये देखने लगे कि हाउ वी रूल इंडिया, हाउ वी how we rule India, and how do basically how we expand our powers in India. ठीक है, उसके बाद उन्होंने अगर इंडिया में जैसे इंडियंस चाहते थे कि हम अपनी फोर्स बनाए एंड टू फाइट विद दैट, तो बेसिकली उनको एक सब्सिडरी अलायंस मिलता. सब्सिडरी अलायंस मींस दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिशर आर्मी टू मेक देयर सब्सिडरी फोर्स, और उसके लिए भी उन्हें पे करना पड़ता था. अगर वो पे नहीं करते थे तो उनकी जो
प्रॉपर्टी थी, उनकी जो पेमेंट्स थी, उनकी जो टेरिटरी थी, वो एज अ पेनल्टी की तरह ले ली जाती थी। अब एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। व्हेन रिचर्ड विल्सन वाज गवर्नर जनरल, द नवाब ऑफ अवध was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay the subsidiary force. Hyderabad was also formed to be कोर्ट टेरिटरी ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। ऐसा ही उनके साथ हुआ, जबकि गवर्नर जनरल रह चुके हैं वो, बट तब भी उन्हें उस सब्सिडरी फोर्स के लिए पे करना पड़ता था। अगर वो पे नहीं करते तो उनकी फोर्सेस को उनकी जो टेरिटरी थी एज अ पेनल्टी के लिए हम ले लिया करते थे। ठीक है। What powers did residents have? अब जो वहां पर जो रेजिडेंट्स रहते थे उनकी पावर्स क्या क्या थी, ये देखो यहाँ पर एक नवाब सशरुद्दीन शाह जो थे अवध के, उनकी पिक्चर है। उनका ये जो उनका जो राजपाट था, जो कि जो उनकी ट्रीटीज थी बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद, जो कि उनको जब बनाया गया था नवाब, ये उस चीज की जो उनकी अथॉरिटी थी उनके पास, ये वो है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, व्हाट पावर्स डिड द रेजिडेंट हैव? This is what James Mill, the famous economist and the political philosopher from Scotland, wrote about the resident appointed by the company. कंपनी ने जो रेजिडेंट्स अपॉइंट किए थे उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है। We place a resident who really is kind of the country. जो कंट्री के लिए लॉयल पर्सन है, हम उसको एज अ रेजिडेंट प्लेस करेंगे। Whatever injunctions of non-interference he may act under, as long as the prince acts in the perfect subordinance and does what it agreeable to the resident, that is to the British government, things go on quietly. They were managed without the resident appearing much in the administration of affairs. But when anything of a different nature happens, the moment the prince takes a course which the British government think wrong, then comes क्लैशिंग एंड डिस्टर्बेंस। बेसिकली उन्होंने अपने पर्पस के लिए रेजिडेंट्स को रखा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बट सम चीजों के लिए उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ कौन करेगा। अब यहाँ पे एक इंजंक्शन का मीन्स आता है इंस्ट्रक्शन। वो तो अब जब व्हेन वी रीड अ लाइन, तो इससे ही हमें मीनिंग क्लियर हो गया कि उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट दे नॉट टू डू इन व्हाइल दे आर गोइंग टू बी अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। सो उसके बाद आता है सवेरेंस मीन्स सबमिशन, मीन्स वही चीज है कि उनका इंस्ट्रक्टिव नेचर उनको दिया गया कि जो आपका किंग कहेगा, जो आपका प्रिंस कहेगा, ओनली यू हैव टू डू दैट। अब आता है, हम एक रूलर के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट टीपू सुल्तान, जिनको हम बोलते हैं टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है। टीपू सुल्तान का नाम बहुत सुना भी होगा, इफ some children are involved in history, so they have listened the name of Tipu Sultan. So let's read about him. The country resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest. This can be illustrated with the case of the southern India state of Mysore. Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali. Hyder Ali का भी बहुत famous नाम होगा, and his famous son टीपू सुल्तान। हैदर अली के जो बेटे थे वही थे टीपू सुल्तान। हैदर अली भी एक बहुत टाइम पे एक रिवोल्टिस्ट थे, जो रिवोल्ट करते थे, जो डायरेक्टली कन्फेडरेशन मींस फेस टू फेस फाइट करते थे मिलिट्री से, ब्रिटिश आर्मी से। ठीक है। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबली ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डम। पेपर क्या होता है? ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, मसाले। पेपर मीन्स मसाले, एंड कार्डम मीन्स इलायची जो होती है, ठीक है, ग्रीन इलायची। ठीक है। टीपू सुल्तान spotted the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. Basically टीपू सुल्तान ने जब ये चीजें देखने लगे कि हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटिंग इंडिया, धीरे धीरे कैसे वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करे, खत्म करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, उसको डिसअलाउड कर दिया कि आप ये सब चीजें यहाँ से आप क्या एक्सपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, कंपनी को मना कर दिया। He also established a close relationship with the French in India, the modernization his army with their help. उन्होंने उनका एक क्लोज रिलेशनशिप रहा किससे? फ्रेंच से इंडिया में, एंड उन्होंने मॉडर्नाइज किया
अपनी आर्मी को विद देयर हेल्प। द ब्रिटिश वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स ब्रिटिश के अंदर एक क्वेश्चन मार्क था कि ये सब कैसे हो रहा है। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। बेसिकली ब्रिटिशर्स के मन में भी कहीं ना कहीं एक डर था कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे रूलर्स अगर इंडिया में होंगे तो हमारा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल, और यहाँ पर एक राजपाट चलाना मीन्स एक किंगडम फैलाना एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा टास्क होगा उनके लिए। ठीक है। 4 wars वर fought विद मैसूर। ब्रिटिश आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश आर्मी वर्सेस वर्सेस टीपू सुल्तान मैसूर में जो दो बैटल्स हुए, 4 बैटल्स बेसिकली लड़े गए। फर्स्ट बैटल था जो हमारा ये हमारी जो डेट्स हैं ये आपके 4 वॉर्स की डेट है। बेसिकली फर्स्ट वॉर चला 3 years, सेकेंड वॉर चला 4 years एंड थर्ड वॉर चला 2 years एंड लास्ट वॉर हमारा फॉट हुआ था 1 year के लिए 1799। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीगंगपथा डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। कंपनी ने जो विक्ट्री जीती वो लास्ट बैटल में जीती। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफीटिंग हिज कैपिटल। टीपू सुल्तान को मार दिया गया था तभी वो लोग जीते थे। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वॉडियार्ड्स एंड अ subsidiary alliance was imposed on the state. Basically, टीपू सुल्तान was killed defeating his capital. उसकी कैपिटल को, जो मैसूर की कैपिटल थी श्रीरंगपता, उसको डिफीट करके उन्होंने उस डायनेस्टी को वही एक सब्सिडरी अलायंस बना दिया गया था उसकी स्टेट पे लगा के। टीपू सुल्तान का ये देखो ये टॉय टाइगर था। ठीक है। उनको ये एक उनका जो फ्रेंच के साथ उनका ये जो सिस्टम था ये ब्रिटिशर्स के साथ ये वो सब चीजें हैं। ठीक है। सन ऑफ टीपू सुल्तान जो उनका हॉस्टेज बना लिया गया उन्हें, ये सब चीजें वो एक पेंटिंग में उन्होंने बताया। ये देखो ये लेजेंड, द लेजेंड ऑफ टीपू, टीपू के जो लेजेंड उनके बारे में भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय लेजेंड एंड देयर पावर्स ग्लोरीफाइड थ्रू फ्लॉक, फॉर हियर इज अ legend about Tipu Sultan, who became the ruler of Mysore in 1782. It is said that once he went hunting in the forest when a French friend there he came face to face with a tiger. His gun did not work and his dagger fell to the ground. He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. Finally, he was able to kill the tiger in the battle. After this, he came to be known as the Tiger of Mysore. He had the image of the tiger on his flag. Basically हम टीपू सुल्तान को द टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहते हैं, वही एक स्टोरी हुई थी जब उनका एक फ्रेंच फ्रेंड वहां फंस गया था जंग फॉरेस्ट में। जब वो हंटिंग करने गए थे तो वहां पर उन्होंने विदाउट आर्म्स, विदाउट एनी वेपन उन्होंने टाइगर से फाइट की थी और टाइगर को किल कर दिया था। तो दैट्स व्हाई द टीपू सुल्तान इज कॉल्ड टू बी एज टाइगर ऑफ मैसूर। नाउ नेक्स्ट, वॉर विद मराठास। अब देखो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने अपने रूलिंग को, अपना एक किंगडम इंडिया में फैलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे वॉर लड़े। सबसे पहला वॉर हुआ था 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, फिर हुआ 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर, फिर उसके बाद टीपू मैसूर के साथ उन्होंने 4 वॉर्स फाउट करे जो कि एक हमने 3 साल के लिए चला, दैट इज ऑफ 1767 to 1769। फिर उसके बाद फिर एक वॉर चला जो कि 4 साल के लिए 1780 to 84। फिर उसके बाद एक वॉर चला 2 साल के लिए 1790 to 92। फिर एक और वॉर चला 1799 तक। ये 4 वॉर लड़ने के बाद वो लोग ने जब विक्ट्री उनकी कैपिटल पे ली तभी कंपनी हुई। फिर नेक्स्ट अब उनका वॉर चला मराठास के साथ। फ्रॉम द लेट 18th century, the company also sought to curb, eventually destroy Maratha power with their dynasty in the third battle of पानीपत। आपने बहुत सुना होगा, ये वाले बैटल्स बहुत फेमस रहे हैं। बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में। ठीक है। मतलब बैटल ऑफ बॉक्सर से पहले, क्योंकि बैटल ऑफ बॉक्सर कब हुआ 1764 में। हमारा पहला वॉर हुआ 1757। गॉट इट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वॉर हुआ वो हुआ बेसिकली 1761 में, जो कि था बैटल ऑफ
पानीपत. डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ठीक है, पहला वॉर हुआ बैटल ऑफ प्लासी, सेकेंड बैटल हुआ बैटल ऑफ पानीपत. ये हुआ बट आफ्टर कुछ टाइम्स में. ठीक है, द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड. जो मराठास का एक था कि भाई हम रूल करेंगे दिल्ली पे, वो शैटर्ड हो गया, मींस टूट गया, बिखर गया. They were divided into many states under different chiefs. Sardaras belonged to dynasty as the Sindhi, Holkars, Degwak, and Bhosle. These chiefs were held together in a confederation under a Peshawar principal minister, who became its effective ministry and administrative head based in Pune. Mahadij Sindhi, Nana Fandis were two famous Maratha soldier statements of the late 18th century. Basically 18th century में ये जो उनके जो chiefs थे, ये उनके कुछ नाम है. पेशावर में उन्होंने कैसे बैटल करा, ये वो सब चीजें. पुणे में कौन कौन थे soldiers, उनके basically जो fighting soldiers थे वो कौन कौन थे. The Marathas were subdued in a series of war. In the first war that ended 1782 with the Treaty of Salbhai. ट्रीटी ऑफ सलभई भी था, जहां पे मतलब कि बेसिकली दिस ऑल अबाउट द हाउ ब्रिटिश एक्सपैंड इट्स रूल. मतलब कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी ट्रीटीज, जो उन्होंने वॉर लड़ते गए, वहां से उनको विक्ट्री मिलती गई, वो वहां पे अपना एक्सपैंडेशन बढ़ाते गए. देयर वॉज नो विक्ट्री. द सेकेंड Anglo Maratha War was fought on different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the treaties north to Yamuna River, including Agra, Delhi. Finally, the Marathas' power came to end with the Third Anglo-Maratha War. The Peshawar was removed and sent away to Bittu near Kanpur with a pension. The company now had complete control over the treaties south of Vindhya. बेसिकली उन्होंने, मैं जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. हमने जब टॉपिक शुरू किया द कंपनी रूल एक्सपैंड, कंपनी अपना रूल कैसे एक्सपैंड करेगी, जब वो अदर ट्रीटीज को डिफीट करेगी. ठीक है, जब वो वहां पे विक्ट्री लेगी. ठीक है, अलायंसेस अपने सेटअप करेगी, अपनी फोर्सेस को वहां पर, मतलब कि अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए उन्हें तो बड़ा किंगडम्स चाहिए होते हैं ना. तो किंगडम्स कैसे मिलेंगे, जब वो बड़ी बड़ी ट्रीटीज को, बड़े बड़े किंगडम्स को डिफीट करेंगी. तो कंपनी ने इस वॉर में भी सेम वही किया. ठीक है, अब आता है द क्लेम टू पैरामोंटस. इट इज क्लियर फ्रॉम अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th century the company pursued an aggressive policy of टेरिटोरियल एक्सपेंशन. मैंने अभी आपको यही चीज बताया कि कंपनी परस्यूट करिए कि एग्रेसिव तरीके से, मींस वायलेंस से ट्रीटीज को डिफीट करना, उस पर विक्ट्री लेके आगे अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना. अंडर लॉर्ड हेस्टिंग, Governor General 1813 to 1823, a new policy of paramountess was initiated. अब हम ये भी पढ़ लेते हैं कि ये पॉलिसी क्या थी. Now, company claimed that its authority was paramount or superior. ठीक है, hence its power was great than that of India's state. In order to protect its interest, it was justified in annex or threatening to annex an Indian kingdom. This view continued to guide later British policy as well. Basically जो claim उन्होंने किया वो ये किया कि अब से हमारी जो अथॉरिटी, हमारी जो पावर होंगी वो इंडियन की स्टेट से, इंडियन रूल से भी ज्यादा होंगी. मींस अब हम लोग एम्फोसाइज किसको देंगे, अब हम किसे इंपॉर्टेंस किसे देंगे, हम ब्रिटिश पावर्स को इंपॉर्टेंस देंगे, नॉट कि इंडियन रूलर्स को और इंडियन स्टेट्स को. बेसिकली द क्लेम ऑफ पैरामाउंटस यही कहता है कि पैरामाउंट होना मींस सुपीरियर हो जाना. ठीक है, दिस process however did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Chanana took to arm and led an anti-British resistance movement. She was arrested 1824 and died in prison in 1829. But Ramaya, a poor chowkidar of Sangoli in Kittur, carried on the resistance. With popular support, he destroyed many Britishers' camps and records. He was caught and handed by the Britishers in 1830. You will read more about several cases of resistance later in this book.
बेसिकली उसके बाद जब ये जो हमारा जो जो ब्रिटिशर्स ने ये जो रूल निकाला था, सुपीरियर पावर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनकी अथॉरिटी को सुपीरियर पावर देना, इस चीज को बहुत लोगों ने रिवोल्ट किया, इसको बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की। उसमें से काफी चीज नया थे, जो एक पुअर चौकीदार था, बट उन्होंने भी एक रेजिस्टेंस दिखाई और इसको खत्म करने का रखा, बट ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज अ सिंगल पर्सन कांट बी चेंज लॉज। बेसिकली एक सिंगल पर्सन उस चीज को नहीं कर सकता चेंज। ये थे हमारे लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अ स्टैचू ऑफ क्वीन ऑफ कितूर कर्नाटका में है अब जो ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेन वरिड अबाउट रशिया। अब बेसिकली ब्रिटेन जो था उस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ बेसिकली 19th सेंचुरी, वहां पर वो एक सुप्रीम पावर था ब्रिटेन। ठीक है, तो अब उसको ये हुआ कि अब वो वरिड किसके लिए हो गया, रशिया के लिए। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया एंड enter India from northwest. Driven by the fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirectly company rule there. Sindh was taken over. Next in line was Punjab, but the presence of Maharaja Ranjit Singh held back द कंपनी। बेसिकली एक रंजीत सिंह का भी आपने बहुत नाम सुना होगा। आफ्टर हिज डेथ 1839 टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर वाज फॉट विद द सिख किंगडम। अल्टीमेटली 1849 पंजाब वाज एनेक्स। बेसिकली मतलब कि सिंपल सी एक बात है कि कंपनी अपना रूल एक्सपैंड करने के लिए हर एक जगह पे अपना किंगडम, अपने एक रूलर फैलाना चाहती है। उसको वरिड होने लगा कि रशिया अब एक बहुत बड़ा एशिया का पावर बन जाएगा, तो वो इंडिया में घुस जाएगा किसी भी तरीके से, और हमारा ये जो रूल है वो सब खत्म हो जाएगा। तो उस चीज को बचाने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या करा, अफगानिस्तान को अपने पास लिया। अफगानिस्तान जब आ गया तो उनका नेक्स्ट टारगेट क्या था, सिंध था। जब सिंध हो गया तो उसके से नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या था, पंजाब। अब पंजाब में वो उसको इतनी जल्दी क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि वहां पर थे महाराजा रंजीत सिंह जी। महाराजा रंजीत सिंह इज अ सुप्रीम पावर हु डजंट अलाउ एनी ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एंटर इन पंजाब, बट आफ्टर हिज डेथ तो उसके बाद उनके लिए बहुत इजी हो गया पंजाब पर कब्जा करना। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अपने सिख किंगडम को भी अल्टीमेटली एक पंजाब को भी अपने अंडर ले लिया। ये है महाराजा रंजीत सिंह का होल्डिंग कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहते हैं, नाउ विल स्टडी दिस। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डालोसिस। ठीक है, हु वाज द गवर्नर जनरल 1848 टू 1856। बेसिकली एनेक्सेशन क्या होता है, अपनी किंगडम को बढ़ाना, डिफीटिंग द अदर पावर्स। ठीक है, उस अब यही है था एक डॉक्ट्रिन ऑफ लॉर्ड डालासी के उसमें। ठीक है, जहां पर क्या था, ही डिवाइज्ड ही डिवीज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. Lapse means that is become a part of company. Lapse means उस वो किंगडम खत्म हो जाएगा और वो सबमर्ज किस में हो जाएगा, कंपनी की टेरिटरी में। ठीक है, अगर किसी ने एक मेल, मान लो कहते हैं ना राजा का बेटा राजा ही बनेगा, अगर एक राजा उसे पता है कि अब मेरा राजपाट खत्म हो रहा है, उसने किसी को दूसरे बंदे को हायर नहीं किया उसके मरने से पहले या उसके मरने से पहले, तो इट मीन्स कि वो जो उसका किंगडम है वो लैप्स हो जाएगा, और जो कंट्री है, सॉरी जो कंपनी है, वो उसको अपनी टेरिटरी में ले लेगी। वन किंगडम आफ्टर अनदर वन एग्जिस्ट सिंपली बाय एम्प्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। बेसिकली उन्होंने सिंपली यही किया, इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई कर दिया, और इसकी मदद से उनको बिना किसी वॉर के वो हर एक किंगडम को अपने अंदर लेते गए। 17 में भी ऐसे हुआ, साबलपुर में भी ऐसे, उदयपुर में भी ऐसे हुआ, नागपुर में भी और झांसी में भी यही सब हुआ। फाइनली इन 1857 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। अवध एक बहुत बड़ा, आपने सुना होगा, एक बंगाल में बहुत बड़ा अवध एक देश रहा है। दिस टाइम द ब्रिटिशर हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट। दे सेड दे वर
obliged by duty. उनके पास एक अनदर आर्ग्यूमेंट था कि हम तो ड्यूटी में बंधे हुए हैं, to take over अवध in order to free the people from misgovernment of the नवाब. बेसिकली उन्होंने वही किया, मिस गवर्नमेंट ऑफ नवाब से उसको चीज कर दिया. Enraged by humiliation way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. बहुत revolts हुए कि इस डॉक्ट्रिन को हटाओ, ऐसा सब कुछ बहुत कुछ चला. These are some maps how मैसूर पे उन्होंने कैसे कब्जा किया, ठीक है, लखनऊ दिल्ली उन्होंने क्या क्या कर लिया, पहले कैसा था, उसके बाद कैसा हुआ, ये सब चीजें. मीन्स पहले तो ये था ना कि कैलकाटा, बनारस, इन सब जगह जब कंपनीज आई थी, जब कंपनी ने ये एक्सटेंशन लाया नहीं था, उसके बाद जब ये एक्सटेंशन आया, इम्पोज हुआ, तब कैसा हुआ, ठीक है. और उसके बाद जब ये एक्सटेंशन, ये जब डॉक्ट्रिन आया, तब ये हाल था हमारे इंडिया. गॉट इट. अब आता है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. अब देखो कंपनी ने क्या, कंपनी ने अपना किंगडम तो बहुत फैला लिया, ठीक है, तो अब वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसको संभालेंगे कैसे, उसको संभालना भी तो बहुत जरूरी है ना. उसके लिए क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए, ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स इंप्लीमेंटेशंस चाहिए टू मेक अ वेल डिफाइंड कंट्री. एक रूल बनाने के लिए वॉरेन हास्टिंग आए, लॉर्ड गवर्नर जनरल फ्रॉम, एक बहुत लंबे टाइम के लिए वो एक गवर्नर जनरल है, was one of the many important figure who played a significant role in expansion of company power. उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया वॉरेन हास्टिंग ने इस चीज को बढ़ाने के लिए. By this time the company has acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. British territory was broadly divided into administrative unit called presidencies. ये तो आपको पता ही है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इम्पोजिशन है, प्राइम मिनिस्टर की पावर एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट ज्यादा है, बट इन अदर फॉरेन कंट्रीज सबसे ज्यादा पावर्स किसकी हैं, प्रेसिडेंसीज की है ना. उन्होंने तो पहले ही ब्रिटिश टेरिटरीज को ब्रॉडली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है. दे वर 3 presidencies: Bengal, Madras and Bombay. Each was ruled by the governor. The supreme head of the administration was the Governor General Warren Hastings. The first, basically Warren Hastings जो थे वो first Governor General थे. Introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. From 1772, a new system of justice was established. Each district has 2 courts, ठीक है, अ क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, फौजदारी अदालत जिसको हम बोलते थे. बेसिकली 2 कोर्ट्स बनी, एक तो बनी क्रिमिनल कोर्ट, एक बनी सिविल कोर्ट, जिसको हमने क्रिमिनल कोर्ट को क्या बोला, फौजदारी अदालत. ये देखो ये क्रिमिनल कोर्ट और उसका नाम था फौजदारी अदालत, और एक बनी हमारी सिविल कोर्ट जिसको हमने नाम दिया दीवानी अदालत. मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स interpret Indian laws for the European district collectors who president over civil court. The criminal court were still under this criminal court थे वो still under किसके थे, काजी. काजी क्या होता है, एक जज को हम ना उर्दू में बोलते हैं काजी, ठीक है. एंड मुफ्ती, मुफ्ती क्या होता है, यहाँ पे देखो मुफ्ती की डेफिनेशन दी हुई है, अ ज्यूटिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर, वही मतलब ये दोनों वर्ड्स जो हैं जजेस के लिए, जस्टिस के लिए, कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी की जो जजेस थी उसके लिए काजी और मुफ्ती, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर. इम्पीचमेंट क्या होता है, अ ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ लॉर्ड इन इंग्लैंड फॉर चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स. बेसिकली जब 2 पार्टीज के बीच में जब एक लॉ ऑफ कोर्ट में हम कोई केस लेके जाते हैं, तो पहले वो केस सिर्फ एक सुनवाई बेसिस पे, एक रैंडम एक ट्रायल उस पे चल रहा होता है, बट जब उस केस को मंजूरी मिल जाती है तो वो ऊपर सुपीरियर पावर्स में जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रायल बेसिस पे हम केस लड़ते हैं, उस चीज को कहते हैं हम इम्पीचमेंट. गॉट इट. ये देखो ये उस टाइम के जो ट्रायल पेंटिंग थी जो वॉरेन हास्टिंग के टाइम, आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल इस चीज को, इसको जो ट्रायल वॉरेन हास्टिंग की, जैसे ये कोर्ट ये लगी हुई है ना उस टाइम की. आपने एक न्यू मूवी आई है केसरी 2, ठीक है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग. गाइस यू मस्ट वॉच दिस मूवी. दिस इज, आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उस टाइम पे कैसी थी, बहुत इजीली, ठीक है.
A major problem was the Brahma Pandit gave different interpretations of local laws based on different schools of Dharamshala. ठीक है, to bring out uniformity in 1775 11 पंडित्स were asked to complete a digestive of Hindus laws. ठीक है, ये सब एक उनका कैलकटा में उनके जो laws थे, उनकी अदालत से उनके names है. You guys can read this whole box. Got it? The principal figure in an Indian district was the collector. Collector को बहुत importance दी थी उस टाइम पे. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का हेड ही कलेक्टर होता है. ठीक है, as the title suggests, his job was to collect revenue, taxes and maintain law and order in the district with the help of judges, police officer and दरोगास बोला जाता है ना, जो हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं उनको हम दरोगास बोलते हैं. हिज ऑफिस द कलेक्टोरेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टेडली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी. गॉट इट? मतलब उस टाइम पे कलेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी. पूरे डिस्ट्रिक्ट का हर एक चीज कौन संभालता था? कलेक्टर. द कंपनी आर्मी. अब हम पढ़ते हैं, मे बी इट इज अ लास्ट टॉपिक. इसमें हम पढ़ेंगे कंपनी आर्मी कैसी थी, धर्मशास्त्र क्या होते हैं, स्वरा, मुश्कैट, मैचलॉक, ये सब चीजें क्या. Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but their power rested on its military strength. The Mughal army was mainly composed of cavalry, ठीक है, and infants, that is peasants. Foot soldiers थे मुगल आर्मी के पास. They were given training in archery and the use of sword. Sword means वो तलवारबाजी करना. The cavalry dominated the army, and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally training infants. The rural areas had a large number of armed peasants, and the local Zimidar often supplied the Mughals with pedal soldiers. A change occurred in 18th century when Mughal successors, state like Awadh, Banaras, started recruiting peasants into their armies and training them as a professional soldier. The East India Company adopted the same method when it began recruited for its own army, which came to be known as the Spy Army. ठीक है? As warfare technology changed from 1820s, the cavalry required of the company's army declined. This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan, and Egypt, where soldiers were armed with muskets, matchlocks. The soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirements, and its infant regiment now became more important. In early 18th century, the British began to develop a uniform army culture. बेसिकली इस पूरे हमने जो पैराग्राफ्स पढ़े, इसमें वो कह रहा है कि कंपनी की आर्मी कैसी थी. मुगल एम्पायर, मुगल आर्मी थी. मुगल एम्पायर क्या, सॉरी, आर्मी क्या थी? पैदल सोल्जर्स थे जिनके पास कोई, मतलब कि बेसिकली नॉर्मल उनके स्वॉर्ड होते थे, तलवारबाजी होती थी, उससे ज्यादा उनके पास कोई और इक्विपमेंट्स नहीं थे टू फाइट विद द अदर पार्टी, अदर ऑपोजिशन पार्टी. ठीक है, बेसिक उसके बाद उन्होंने फिर कुछ चेंजेस अपने अंदर लाए. मुगल सक्सेशन लाइक अवध, बनारस के उन्होंने पीजेंट्स मतलब फार्मर्स को रिक्रूट करने लगे ताकि वो उन्हें प्रोफेशनल्स क्या दें, एक ट्रेनिंग दे हाउ टू फाइट विद द ओपोनेंट्स. ठीक है, उसके बाद उन्होंने रिक्रूट किया उन्होंने, और बेसिकली उनकी जो टेक्नोलॉजी थी उसको चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि जो बड़े ब्रिटिश आर्मी थी वो किससे फाइट करती थी? इन्फेंट्स को गन्स देती थी, गन्स के साथ, एंड टाइप ऑफ उसके साथ बेसिकली एक मैचलॉक क्या होता है? अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वाज इंजर्ड बाय अ मैच. मतलब मैच स्टिक से एक मैचलॉक एक गन टाइप की होती है, उसके अंदर उससे वो लोग फाइट किया करते थे. गॉट इट? बेसिकली ये देखो ऐसा था पहले कुछ सिस्टम फाइटिंग जो उनके सोल्जर्स थे बंगाल के. इंक्रीजिंग सब्जेक्ट टू सोल्जर्स वर increasingly subject to European style training, drill and discipline that regulate their life far more than before. Often this created problems since caste and community feeling were ignored in building a force of profession. Soldiers could individuals so easily give up their caste and religion feeling? Could they see themselves only as soldiers and not as a member of communities?
What did the spoy feel? मतलब जो स्पॉयज क्या होते हैं, जो सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं, जो पीजेंट्स एज अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको हम स्पॉयज बोलते हैं. हाउ डिड दे रिएक्ट टू चेंज इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी? दैट इज देयर सेंस ऑफ who they were. The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of spoils. You will हम इस रिवोल्ट के बारे में ही पढ़ेंगे. बेसिकली इसे प्रोफेशनल्स में हम कोई कास्ट, कोई कुछ, किसी चीज का हम डिस्क्रिमिनेट ना करते हुए प्रॉपरली हम सोल्जर्स अपॉइंट करते थे, ताकि हम अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना सकें और बैटल सपोर्ट करें. अब पूरे चैप्टर में हमने जो जो पढ़ा कि कैसे कंपनी आई, कैसे कंपनी ने ईस्ट इंडिया, ब्रिटिशर्स आए, औरंगजेब के बारे में पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा, उसने अपना कैसे रूल एक्सपैंड किया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बारे में पढ़ा, फिर उस कंपनी रूल को एनेक्स करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए क्या क्या कौन कौन से बैटल फॉट करे. उस बैटल ऑफ फोर्ट के बाद उन्हें टीपू सुल्तान के बारे में हमने पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ा हमने. ठीक है, उस चीज का पूरा एक कंक्लूजन, फटाफट एक रीडिंग लेते हैं. 10 ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर. कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई? तो सिर्फ ट्रेडिंग करने आए थे ना, उसके बाद उन्होंने टेरिटोरियल colonial power बना दिया. The arrival of new stream technology in early 19th century also aid this process. Till this would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. Steam ships reduces the journey time to 3 weeks, enable more Britishers and their families to come to a far off country like India. बहुत चीजें हुई. अगर वो लोग सिर्फ ऐसे ही सी की तरफ से आते तो 6 to 8 months लग जाते आने में, बट उसके बाद उन्होंने और एवोल्यूशन किया और स्टीम शिप्स लेकर वो आए. ठीक है. इन 1857 द कंपनी केम टू एक्साइड डायरेक्ट रूल ओवर 63% ऑफ द टेरिटरी. मैंने आपको वो मैप्स में दिखाया. 78% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट कंबाइंड विद इट्स indirect influence on the remaining territory and population of the country. The East India Company had virtually the whole of India under its control. So this was the end of the chapter. अब यहाँ पर देखो ये कुछ मैचअप्स हैं, हम इसको करने की कोशिश करते हैं. दीवानी किसको बोलते थे हम? बताओ. क्रिमिनल कोड को या सिविल कोड को? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. इसको भी हम देखते हैं बाद में दीवानी क्या होता है. टाइगर ऑफ मैसूर, ये तो क्लियर कट है, टीपू सुल्तान. फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट. ठीक है. अब उसके बाद रानी चमन, ये कौन है? लेड एंड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कितूर. हमने ये पढ़ा था कि इन्होंने क्या करा था, एक कितूर में वो किया था. अब दीवानी कौन होते हैं? राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. जो दीवानी, जो हमने पढ़ा सिविल कोर्ट को भी बोलते हैं हम दीवानी अदालत, तो वही होते हैं जो कलेक्टर्स होते हैं. सिपाही मैंने आपको भी बताया कि जो सोल्जर्स थे उनको हम सिपाही बोलते हैं. ठीक है. ये सारी आपकी कुछ बैक एक्सरसाइज है. यू गाइस कैन डू इट बिकॉज मैंने आपको पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दिया गया है. सो दिस वाज द एंड. Thank you so much guys. We'll meet in next video so soon, and sorry for the delay. I know I am back after so long time. So let's meet in the next video. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye guys.